Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for 8th of June. So, the first topic is World Food Safety Day. इसका जो फिफ्थ एडिशन है ये 7th ऑफ जून को ऑब्जर्व करा गया था। इस ओकेजन पे हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करे, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। पहले तो उन्होंने रैपिड फूड टेस्टिंग किट पोर्टल अनवील करा था। दिस इज अ पोर्टल ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया and this portal aims to streamline the operations of the RAFT scheme, that is Rapid Food Testing Kit Scheme. ये स्कीम 2019 में लॉन्च करी गई थी to encourage the adoption of the advanced technologies for food testing. साथ ही में फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स भी रिलीज करा गया था। ये इंडेक्स आपका 2018-19 में पहली बार लॉन्च करा गया था। और फिफ्थ एडिशन में अगर हम टॉपर्स की बात करें तो among the large states, Kerala topped the rankings followed by Punjab and Tamil Nadu. In smaller states, Goa topped the rankings followed by Manipur and Sikkim. And in union territories, J&K topped the rankings followed by Delhi and Chandigarh. अगर हम इसके parameters देखें, so this index ranks the performance of states and UTs across 6 different parameters. कुछ जगह पे 5 पैरामीटर्स लिखे हुए थे पर वो पुराने थे। ये नई एडिशन है, एक 6th पैरामीटर भी इसमें इंक्लूड करा गया है। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा. Second parameter is compliance. Third parameter is food testing infrastructure. Fourth parameter is training and capacity building. Fifth is consumer empowerment and FSSAI initiatives. And last is improvement in ranks of states and UTs from State Food Safety Index of 2021-22. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टील सेक्टर के कंटेक्स्ट में। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है ये। नाउ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील अनाउंस्ड दैट इंडिया करंटली रैंक्स एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील by surpassing Japan in 2018 and at present India is a net exporter of steel. साथ ही में अगर स्टील सेक्टर के इनिशिएटिव्स की बात करें so national steel policy was announced in 2017 which aims at achieving the total crude steel capacity of 300 million tons per annum and total crude steel demand production of 255 million tons per annum by 2030-31. साथ ही में end of life vehicles will also be used as raw material for the production of steel. And Government of India ने एक स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी भी लॉन्च करी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक नई स्कीम जिसका नाम है माहिर, which stands for Mission on Advanced and High Impact Research. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ दिस स्कीम हैज बीन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस स्कीम की ड्यूरेशन है 5 years फ्रॉम 2023-24 दैट इज द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर टू 2027-28। इसका ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर एंड डेवलप देम इंडिजिनियसली एट स्केल फॉर डिप्लॉयमेंट विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। इसका जो फंडिंग देखें तो दोनों मिनिस्ट्रीज और उसके अंडर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो इसे फंड करेंगी। इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखें सो द मिशन विल हैव अ 2-tier structure. First is Technical Scoping Committee, which will be chaired by the chairperson of Central Electricity Authority, and the Apex Committee, which will be chaired by the Union Minister for Power and New and Renewable Energy. Now, 8 areas have been identified for research under the Mahir scheme. इसे आप याद रख लेना, इग्नोर मत करना, ऐसे टॉपिक यूपीएससी पूछ सकती है। So the 8 areas are alternatives to lithium-ion storage batteries. Second is modifying electric cookers, pans to suit Indian cooking methods. Third is green hydrogen for mobility. Fourth is carbon capture. Fifth is geothermal energy. Sixth is solid state refrigeration. Seventh is nanotechnology for electric vehicle battery. And last is indigenous CRGO technology. Next topic है हमारा exploration of coal and lignite scheme. ये टॉपिक भी आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। एंड दिस स्कीम हैज नाउ बीन अप्रूव्ड विद एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 2980 crores फ्रॉम 2021-22 to 2025-26. That is the period co-terminus with the 15th Finance Commission cycle. Under this scheme, exploration for coal and lignite is conducted in 2 broad stages. First is promotional or regional exploration and second is detailed exploration in non-coal India limited blocks. Next topic है हमारा National Campaign for Addiction Free अमृतकाल। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ के लिए रेलेवेंट है। नाउ दिस कैंपेन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स
in partnership with Tobacco Free India, a citizen right group. This campaign was launched on World Tobacco Day, that is 31st of May 2023, and इसका objective है to create a tobacco and drug free nation. इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं. NCPCR, that is National Commission for Protection of Child Right. So it is a statutory body or a legal body established under कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005. ये 2007 में एस्टैब्लिश करी गई थी. इट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खारिफ क्रॉप्स. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था. जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट है. नाउ द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स has approved an increase in the minimum support price for all the mandated kharif crops for marketing season 2023-24. MSP में जो increase है, that is in line with the announcement made in the Union Budget 2018-19, which said that MSP will be fixed at a level of at least 1.5 times the all India weighted average cost of production. अगर recent hike के बारे में बात करें, so the highest increase in MSP is in moong by 10.4%. And the expected margin to farmers over their cost of production are estimated to be highest in the case of bajra. That is expected to be in the case of bajra. Next topic है हमारा सेडिशन का. इसके ऊपर 2 एडिटोरियल्स आए हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 6 पे. तो सेडिशन हमने पिछले कुछ 2 दिन में हमने डिस्कस करा था कि लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, सेडिशन है क्या. तो वो आप लास्ट फ्यू डेज के डेली पॉइंटर्स हेडलाइंस ऑफ द डे रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट है इसके यूट्यूब चैनल से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये आर्टिकल, हाउ कैन वी ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन सिटी, जिसके अंदर सेक्टर कपलिंग अप्रोच के बारे में बात करी है. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 8 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है. नाउ एज आई मेंशन्ड दैट, अगर इस आर्टिकल की हम ब्रीफ समरी देखें, सो इट सेज दैट ट्रांजिशनिंग टू लो कार्बन और even net zero cities requires humans to integrate mitigation and adaptation options in multiple sectors. This approach is known as the sector coupling approach for transition to low carbon city. ये जो strategy है इसके अंदर, it varies from city to city based on their features. But transitioning to low energy sources is not simple as replacing fossil fuel with clean energy, because इसमें issues of energy justice and social equity आ जाते हैं. Issues related to livelihood, local economic development and socio-economic well-being of people, उनको भी कंसिडर करते हैं. सो इसी वजह से ये एक चैलेंजिंग इशू बन जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क KFON. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 8 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है. Now the Kerala government has officially launched the Kerala Fiber Optical Network, and through it, Kerala government aims to provide interconnection free of cost to 20 lakh below poverty line families. ये है क्या? It is an optical fiber cable network of 30,000 kilometers with 375 points of presence across Kerala. The KFON infrastructure will be shared with all the service providers, including cable operators. साथ में कुछ interesting facts पढ़ लेते हैं. 2019 में Kerala government announced that access to the internet would be a basic right in the state, and thus becoming the first state in the country to do so. ये जो announcement थी 2019 में, this declaration by the Kerala government came 3 years after the United Nations passed a resolution in 2016 recognizing internet access as a basic human right. तो 2016 में United Nations ने इंटरनेट को एक basic human right डिक्लेयर करा और उसके 3 साल बाद in 2019 Kerala government announced the access to the internet would be a basic right in the state. Next topic है हमारा India US Strategic Trade Dialogue. इसका इनॉग्रल एडिशन वॉज हेल्ड रिसेंटली इन वॉशिंगटन डीसी. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. नाउ इस डायलॉग में क्या क्या आउटकम्स रहे? सो इंडिया एंड यूएसए हैव डिसाइडेड टू स्ट्रीमलाइन देयर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज in areas such as semiconductors, space, telecom, quantum computing, artificial intelligence, defense, etc. And this announcement came just ahead of Prime Minister Modi's visit to Washington when a deal for GE 414 jet engine sales to India is planned. Now ये India-US strategic trade dialogue है क्या? It is a key mechanism to take forward the strategic technology and trade collaborations planned under the India-US Initiative on Critical and Emerging Technologies (ICET). नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड साइनिंग अ MOU विद जर्मनी फॉर प्रोजेक्ट 75I. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है. नाउ एज आई मेंशन्ड दैट मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड जर्मन फर्म TKMS signed a MOU for partnership in the submarine production, and now they will jointly bid for the Indian Navy's Project 75I to build 6 advanced submarines in India.
P75I stands for Project 75 India Class Submarines, जिसके अंदर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट करी जाएंगी फॉर इंडियन नेवी। साथ ही में हम मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में पढ़ लेते हैं। सो इट इज सिचुएटेड इन मजागांव इन मुंबई। इट इज अ PSU managed by the Ministry of Defense and it was established in 1934. It manufactures warships and submarines for Indian Navy as well as vessels for offshore oil drilling. Next topic है हमारा Air Defender 2023 एक्सरसाइज। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 13 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ जर्मनी विल बी होस्टिंग द एयर डिफेंडर 23 एक्सरसाइज इन दिस मंथ। इसके अंडर नाटो कंट्रीज के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसी कंटेक्स्ट में नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं। नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन इंटरगवर्नमेंटल अलायंस बिटवीन 31 मेंबर स्टेट्स। आउट ऑफ दिस 29 आर यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 आर नॉर्थ अमेरिकन countries. These two are Canada and USA. It was established after the World War II with the signing of North Atlantic Treaty in 1949 in Washington DC. जैसे मैंने बताया कि अभी 31 कंट्रीज हैं। रिसेंटली फिनलैंड ने ज्वाइन करा था अप्रैल में। रिसेंटली फिनलैंड ने अप्रैल के महीने में नाटो को ज्वाइन करा था एज द 31st मेंबर। इसका हेडक्वार्टर है आपका ब्रसेल्स में इन बेल्जियम एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ द ट्रीटी नाटो कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। इसका मतलब है कि अगर आप किसी एक कंट्री पे अटैक करेंगे तो वो अटैक देखा जाएगा बाकी सारी कंट्रीज पर भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिस्ट एक्सरेइंग अ सिंगल एटम। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 18 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है। नाउ एज आई मेंशन्ड दैट साइंटिस्ट हैव फॉर द फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड एन एलिमेंट बाय एक्सरेइंग अ सिंगल एटम। इन्होंने एक मेथड यूज करा था इसके लिए जिसका नाम है सिंक्रोटन एक्सरे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी और SXSTM। इस एक्सपेरिमेंट में दे यूज्ड सैंपल्स ऑफ सिंगल एटम ऑफ आयरन एंड टर्बियम विच इज अ रेयर अर्थ मेटल। इसी बैकग्राउंड में हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देख लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें काफी सारी वेव्स होती हैं आपकी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्सरेज एंड गामा रेज। इनके रेडिएशन टाइप, इनकी कितनी वेवलेंथ है, यह मैंने आपका मेंशन यहाँ पे करा हुआ है। और अगर एक्सरेज के बारे में बात करें, मोस्ट ऑफ द एक्सरेज हैव अ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 10 नैनोमीटर्स to 10 picometers corresponding to frequencies in the range of 30 petahertz to 30 exahertz। तो ये आप सीक्वेंसिंग याद रख लेना और एक्सरेज की आप रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आप याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव द थर्ड रिवाइवल पैकेज फॉर BSNL। पहला जो रिवाइवल पैकेज था वो 2019 में अनाउंस करा गया था एंड सेकंड रिवाइवल पैकेज आपका 2022 में अनाउंस करा गया था। दोनों रिवाइवल पैकेजेस की वजह से ही BSNL स्टार्टेड अर्निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स सिंस फाइनेंशियल ईयर 2021-22। और BSNL के बारे में बात करें सो इट स्टैंड्स फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड which is a central public sector undertaking based in New Delhi. It was established in the year 2000. It functions under the ownership of Department of Telecommunications under Ministry of Communications. And आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है Vision Pro। ये एक नया गैजेट एप्पल ने अनाउंस करा है और कहा जा रहा है कि आईफोन के बाद ये एप्पल का सबसे एक लैंडमार्क गैजेट है। ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर के पेज 1 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि एप्पल हैज अनवील्ड द Vision Pro, a mixed reality headset that allows spatial computing by using the wearer's eyes, voice and hands. जैसे मैंने बताया Vision Pro एक ऐसा हेडसेट है that the wearer can control with her eyes, hands and voice, a feature that other headset as of now do not have. It is a augmented reality headset और ये इस तरीके से दिखता है आपका। और साथ ही में अगर हम टर्म्स देखें आप काफी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, मिक्स्ड रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है। सो एक्सटेंडेड रियलिटी इज अ कलेक्टिव टर्म अप्लाइड टू इमर्सिव एक्सपीरियंसेस incorporating various degrees of digital and real information। इसी के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाता है, मिक्स्ड रियलिटी आ जाता है, वर्चुअल रियलिटी आ जाता है। In augmented reality, user views static digital information or visual elements integrated into the real environment. Mixed reality में user interacts with the responsive virtual elements integrated into the real environment. And virtual reality में user is immersed in an interactive digitally generated environment. So friends, ये हमारे आज के important topics थे. I hope you liked it. For more updates on current affairs, you can follow us on YouTube, Instagram and Telegram. Thank you.